Hello students, welcome to my channel Target Study Point, and today we will start chapter number 3 matrices, and we are going to do exercise 3.1 and its solutions. Okay, so go for question number 1. Let's start. In the matrix A equals to, एक matrix हमें given है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एंड राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसका ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड द राइट द एलिमेंट्स, और इन पोजीशंस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें राइट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है. ठीक है. तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M/N. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? M/N, where M is number of rows and N is number of columns. ठीक है. सो कैसे रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर? M/N. M/N, number of M. M is number of rows, so number of rows are here R1, R2, R3. So we have number of rows 3, and C1, C2, C3 and C4. We have 4 columns, so we will write here 4. So order of the matrix will be 3/4. No need to multiply here, just we will write 3/4 only. ठीक है. This is the order of the matrix. Now second thing, the number of elements. We need to tell कि how many numbers this matrix have. So it's simple, just multiply rows by columns. So we will have 3 multiplied by 4. So number of total elements we have 12 for this matrix. Now write the elements. आपको elements लिखना है, that is A13. So try to understand. Aij इस तरीके से होता है. I means number, rows number, and this is column. तो देखो यहाँ पर क्या है, A13. So A13 first row and third column. First row, third column. तो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट रो ये है एंड थर्ड कॉलम इज दिस. सो इसका जो आंसर होएगा, एलिमेंट होएगा, वो क्या हो जाएगा? 19. नाउ चेक फॉर A21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35, and its answer is 35. Now A33 third row, third column, that is -15, and A24 second row, fourth column, that is 12. Okay, and A23 second row, third column. ठीक है. तो second row, third column, that is 5/2. So in this way we can find the order of the matrix and the number of elements and elements for the given positions. Just pause the video to be noted down. Now students, now check for question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? ठीक है. अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? 24 हो. ठीक है. देन हमें बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, एंड अगर हमारे पास मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो? 13 एलिमेंट्स हो, तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? ठीक है. सो चेक करते हैं इसके लिए. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in matrix equals to 24. Total number of matrix, total number of elements in a matrix are 24. Then number of possible orders, or you can say simply possible orders. Possible orders. Possible ऑर्डर्स. ठीक है. चलिए फॉर्म करते हैं. कैसे? देखो, फर्स्ट तो होगा 24,
by 1 means number of rows 24 and number of columns 1, and in the same manner 1 row 24 columns, and we can have 2 by 12 or 12 by 2, ठीक है, and 3 by 8 and 8 by 3, ठीक है, या और भी हो सकते हैं, चेक करिए, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, कि भाई 24 बाय 1 मीन्स की नंबर ऑफ रोज 24 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है। इन द सेम मैनर वी हैव 1 रो 24 कॉलम्स and 2 rows 12 columns and 12 rows 2 columns and 3 rows 8 columns and 8 rows 3 columns, ठीक है। तो these are the possible orders. Now अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हो, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हो तो उस केस में कितने बनेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं 13 एलिमेंट्स के लिए। सो ऑर्डर्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 13, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 13, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स क्या बनेंगे, 13 by 1 और 1 by 13। ओके, यहाँ पर देखो अभी एक और बन सकता है, एक रह गया है, दैट इज 6 by 8 या फिर सॉरी 6 by 8 नहीं, 6 by 4 होएगा, ठीक है। 6 by 4 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 4 by 6, ठीक है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं किसके लिए, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो तब हमारे पास 8 ऑर्डर्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो उस केस में केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 13 by 1 एंड 1 by 13, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। Yes, in this question, question number 3, this is question number 3. Now, if a matrix has 18 elements, number of elements in a matrix are 13. So, number of elements in matrix equals to 18. So we need to tell here possible orders कि कितने possible orders हो सकते हैं। So possible orders, so just make fast, आप भी बनाइए जल्दी से कि क्या क्या हो सकते हैं, चेक करिए। 18 rows 1 column, 1 row 18 columns, ठीक है, and 2 rows 9 columns and 9 rows 2 columns, ठीक है। एंड एक और बन सकता है 3 rows 6 columns and 6 rows 3 columns, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स जो इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें देखो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो मैट्रिक्स में, 5 हो, तो उस केस में ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, then orders can be, then orders क्या हो जाएंगे, या तो होगा 1 रो 5 कॉलम या फिर 5 रो 1 कॉलम, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास 2 ऑर्डर्स बन जाएंगे, 1 रो 5 कॉलम या फिर 5 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिवन है तो एक तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन नंबर्स ढूंढने की, किस किस की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये नंबर मिलता है, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसको बना दिया जाता है। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। Now check for question number 4. This is construct a 2 by 2 matrix A equivalent to Aij whose elements are given by these three. हमें Aij given है और 3 ऑप्शंस हमें यहाँ पर हैं जिनके लिए हमें 2 by 2 का मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है। तो 2 by 2 का मैट्रिक्स तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स एक बात समझनी जरूरी है, 2 by 2 means number of rows are 2 and number of columns also 2,
ठीक है, तो इन दैट केस जो मेरा मैट्रिक्स यहाँ बनना चाहिए, लेट सपोज ए क्या हो जाएगा, AIJ, A11, A12, A21 and A22. This is a matrix whose order is 2 by 2. तो पहला काम ये करना है, ठीक है। इसको करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, इसको करने से हमें आई जे की वैल्यूज पता चल गई हैं कि आई और जे की वैल्यूज हमने क्या क्या रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा A11, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, तो क्या हुआ 2 स्क्वायर बाय 2, दैट्स मीन 4 बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ 2। तो जो फर्स्ट यहाँ से मिला है मैट्रिक्स, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज A11। नाउ चेक फॉर I इक्वल्स टू 1, इसके लिए चेक कर रहे हैं I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 2। सो एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई, A12। तो चेक करिए यहाँ से, I की जगह 1, J की जगह 2 का स्क्वायर बाय 2, सो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 by 2, so this element is 9 by 2। now check for A21, ठीक है। तो A21 में क्या होगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 2 एंड J इक्वल्स टू 1। तो उस केस में A21 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से भी चेक करिए 2 + 1 क्या बना 3, 3 का स्क्वायर 9 by 2, this element is also 9 by 2। and check for last, this is I equals to 2 and J equals to 2। so पोजीशन क्या बन जाएगी, A22। कैलकुलेट करते हैं इसको, so बनेगा 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 + 2 is 4, 4 का होल स्क्वायर 16 by 2, दैट इज 18। चेक कर लीजिए फिर से, I की जगह 2, J की जगह 2, तो 2 + 2 मीन्स 4, 4 का स्क्वायर 16 by 2, so when you will simplify it you will get here 8, so this element is 8, ठीक है। तो in this way we can find the matrix whose order is 2 by 2। now check for part 2, elements are given by this, so just put the values, ठीक है। एक मैट्रिक्स यही फॉर्म कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, A11, A12, A21 एंड A22। सो पहली A11 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो A11 मीन्स 1/1, सो ये जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 1, ये एलिमेंट हमें क्या मिला 1। नाउ A12, तो I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू 2, सो A12 ये जो एलिमेंट बनेगा दैट इज 1 by 2। नाउ A21 इसकी बात कर रहे हैं, A21 की, सो वैल्यू ऑफ I इज 2 एंड वैल्यू ऑफ J इज 1, सो इट इज 2। ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या मिल गई 2। नाउ A22, so value of I is 2, value of J is 2, so we will get 1। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। so this is the matrix for A equals to AIJ, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल जाएगा सेकेंड के लिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इसकी हेल्प से फाइंड करने हैं। नाउ चेक फॉर 3, इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जस्ट राइट द मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं कि जो A है, जस्ट राइट इट, इट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल्स टू A11, A12, A21 एंड A22 एंड ऑर्डर इज 2 by 2, ठीक है। इस तरीके से हो गया। नाउ फर्स्ट वन इज A11, जब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1
अपॉन 2 एंड इसका भी होल स्क्वायर. सो 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, सो इट इज 9/2. तो ये जो एलिमेंट मिला दिस इज 9/2. नाउ चेक फॉर a 1/2. सो 1 प्लस this is 2j, 2 multiplied by 2 whole square by 2. चेक करिए 2 2 जो 4 + 1 तो कितना बनेगा 5 है ना. तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2. So this element is we have 25/2. Now check for A21 this element. So value of I is 2 and j value 1 upon 2. So 2 into 1 2, 2 plus 2 4, 4 4 ja 16/2. So we will get from here 8. This element is 8. Okay, now last one A22. A22 के लिए चेक करना है तो हमें मिलेगा 2 plus 2 multiply by 2 upon 2 and इसका square. So 2 2 जो 4, 4 plus 2 6, 6 6 जो 36/2 and 2 1 जो 2, 2 8 जो 16 and last element we have 18. ठीक है. So this way we can find matrix of order 2/2 if we have elements. ठीक है, in the form of in these 3 ways. ठीक है, just pause the video to be noted down. Okay, now check for question number 5. Construct a 3/4 matrix whose elements are given by this part 1 and part 2. ठीक है, एलिमेंट्स को हमें जो फाइंड करना है वो इसकी हेल्प से करना है. ठीक है, ये जो हमें फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है. ठीक है, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने फॉर्म करना है दैट इज 3/4. 3/4 का मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है. तो एक काम कर लेते हैं, पहले एक 3/4 का मैट्रिक्स यहाँ बना के रख लेते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको पोजीशंस पता चल जाएंगी कि क्या होंगी. ठीक है, तो लेट्स सपोज मैट्रिक्स इज A and 3/4. That's mean A11, A12, A13, A14. Okay, and A21, A22, A23, and A24, and A31, A32, and this is A33 and A34. This is number of rows are 3 and number of columns are 4. तो इस मैट्रिक्स को हमें फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर 3/4 है. अब सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है. तो पहली पोजीशन क्या है A11. इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमें गिवन है इसमें I की जगह 1 पुट करेंगे एंड J की जगह भी 1 पुट करेंगे. सो फाइंड A11 क्या हो जाएगा 1/2 एंड मोड -3 + 1. ठीक है, -3 + 1 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा -2, बट बाहर क्या है मोड है इसलिए क्या आ जाएगा -2 बाहर आके 2/2. इसका मतलब ये क्या बन गया 1. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ इट्स वैल्यू इज 1. नाउ फाइंड A12. A12 फाइंड करते हैं, क्या होगा I की वैल्यू 1. ठीक है, एंड J की वैल्यू 2. सो देखो यहाँ से -3 + 2 मीन्स -1 होएगा, तो -1 बाहर आके क्या हो जाएगा +1. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 1/2. ठीक है, तो यहाँ से हमें 1/2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नाउ फाइंड फॉर A13. A13 मीन्स वैल्यू ऑफ I इज 1. ठीक है, सो 1 जब मल्टीप्लाई करेगा -3 से देन वी विल have -3 and प्लस J की वैल्यू 3 होगी. सो 3 ये तो क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि -3 + 3 is 0. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0. नाउ A14 means I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 4. तो यहाँ से मिलेगा 4 - 3 1 1/2. ठीक है, तो ये जो पोजीशन है A14
इट्स वैल्यू इज 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स को भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ चेक फॉर A21। A21 के लिए जब फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू कितना है 2, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6 एंड J इज 1, तो -6 + 1 कितना होएगा -5, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर -5/2। तो इस A21 की जगह हमने क्या लिखना है -5/2। नाउ चेक फॉर A22 मीन्स I की वैल्यू भी 1 है एंड J की वैल्यू भी I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, सो 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 एंड J 2, सो दिस इज 2 एंड यहाँ ये मॉड्यूलस है। ओके, नाउ -6 + 2 इज -4, मॉड्यूलस से बाहर आकर +4 एंड 4/2 मीन्स 2, दिस इज ओनली 2, so in this place we will write 2. Now check for rest of the places. Next one is A23. So value of I is 2. ठीक है, so 1/2 -2, 3 2 जो 6, तो ये बनेगा -6 + 3 एंड -6 + 3 -3 एंड बाहर आकर 3, सो ये हो जाएगा 3/2। नाउ A23 की जो वैल्यू हो गई है दैट इज 3/2। नाउ फाइंड फॉर A24, so 1/2 mod A24, so -3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा -6 and value of J is 4, so we will write here 4, -6 + 4 -2, -2 बाहर आकर 2 and 2/2 is 1, so A24 is only 1. Now check for A31. A31 के लिए चेक करते हैं, तो A31 क्या हो जाएगा 1/2 एंड मोड वैल्यू ऑफ I इज 3, तो माइनस के 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, -9 आ गया और J की वैल्यू है हमारे पास 1, तो -9 + 1 दैट इज -8 और -8 बाहर आकर +8 और +8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट हियर 4, so you will write here 4. Now A32, so 1/2 I की वैल्यू 3, 3 3s are 9 -9 plus value of J is 2, so -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, बाहर आकर प्लस का 7, so +7/2, so this is 7/2. Now check A33, value of I is 3, so -3 into 3 -9, J की वैल्यू 3 and -9 + 3 -6, बाहर आकर प्लस का 6 and divided by 3, so only 3, so value of A33 is 3. And we have now last one, that is A34, 1/2 and -3 and 3 -9 + 4 and ये बचेगा -9 + 4 is -5 and -5 बाहर आकर 5/2, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ इस प्लेस पर लिख सकते हैं 5/2। So this is the required elements of the matrix जो उसने हमें बोला था, और 3/4 का मैट्रिक्स हमने फॉर्म करना था जो गिवन एलिमेंट था इसकी फॉर्म से। ठीक है, तो जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके,
Question number 5. Construct a 3/4 matrix whose elements are given by this. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो A21 पोजीशन थी उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मोड था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोड था तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5 होगा, ठीक है, बट -5 बाहर आकर +5 होएगा, है ना, तो वो वहां पर बाय मिस्टेकन माइनस चले गया है, ठीक है, तो मेक करेक्शन देयर, ओके, दैट विल बी 5/2 पॉजिटिव साइन के साथ में 5/2, ठीक है, तो प्लीज डू करेक्शन देयर। सो नाउ पार्ट 2, इसमें भी हमें 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो जस्ट राइट कर लेते हैं A2 सॉरी 3/4 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। Where is duster? तो ये कर लेते, सपोज कि जो A है क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A14 and this is A21, A22, A23 and A24 and यहाँ हो जाएगा A31, A32, A33 and A34, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, इसको हमें फॉर्म करना है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चेक, पहले हमें वैल्यू निकालनी है A11 की, तो A11 मीन्स I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, तो यहाँ A11 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओनली 1। नाउ फाइंड फॉर A12, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ I is 1 and value of J is 2, so we will get here 0, तो इस पोजीशन के लिए क्या आ गया 0। नाउ A13, सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा एंड -3 सब्ट्रैक्ट करने पर -1, तो यहाँ हमें मिलेगा -1। नाउ A14, so 2 multiply by 1, 2 आ जाएगा, J is 4, so -2, यहां से हमें मिलेगा -2। Now check for A21, so value of I is 2 and 2 multiply by 2 कितना हुआ 4, -1 that is 3 and A22 कितना हो जाएगा 2 multiply by 2 4 -2 that is 2 and A23 भी फाइंड कर लेते हैं साथ में, so 2 2 जो 4 -3 value is 1 and A24 2 2 जो 4 -4 value is 0, तो इन चारों एलिमेंट्स को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, ओके, सो वैल्यू ऑफ A21 is 3, A22 is 2, A23 is 1 and A24 is 0. Clear? Now check for A31. A31 के लिए चेक करते हैं, A31 एलिमेंट्स क्या है, I की जगह we will put here 3, so 3 2 जो 6 -1 आ जाएगा 5, A32 क्या बनेगा, I की जगह 3, so 3 2 जो 6 -2 4 and A33 3 3 is 9 -3 this is 6 and A34 3 3 is 9, sorry यहाँ पर मिस्टेक हुई है, I की जगह हमने 3 रखना है और 2 ऑलरेडी हमारे पास है, तो बच्चों यहाँ 6 आएगा, ठीक है, एंड J की वैल्यू 3 है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 होएगा, ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पर 3 है I की वैल्यू, सो 2 3 जा 6 - J is 4, so this value is 2. Now write all the values here. So it is A31 5, A32 4, A33 3 and A34 is 2 and this matrix is 3/4. Okay, now I hope it is understood to all of you, ठीक है, कि कैसे हमने
अगर एलिमेंट्स हमें गिवन हो तो हम कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन.